मैं रानू उनियाल जी की तरफ मुखातिब होता हूँ और आप एक बाईलिंगुअल पोएट हैं। आप अंग्रेजी में भी लिखती हैं और अभी अभी उनका हिंदी में ये आया है कलेक्शन सईदा के घर। उस यूनिवर्सिटी से आई है, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से आया जहाँ से रिचर्ड निक्सन आए, जो मिर्तौला में स्वामी कृष्ण प्रेम के नाम से जिन्होंने आश्रम बनाया, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद उनसे तो चले तो बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनके जो शिष्य थे आशीष महाराज जी, उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। करीब उनसे 45 मिनट बात हुई थी 1990 का, वो भी अब नहीं रहे। तो आपसे पहला सवाल, व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग पोएट्री सीरियसली? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 25 साल तक हर आदमी पोएट्री लिखता है और अगर 25 साल के बाद लिखता रहे तो इसका मतलब वो सीरियस अबाउट इट। तो आपने कभी ये सोचा? First and foremost, I must thank all of you for being here and organizers of Almora Literature Fest, primarily Professor Hamid, for inviting me to this festival. You see, I've grown up with rhymes, like all children, other normal children. So when I was small, I used to read rhymes and grew up with rhymes, and I wrote a couple of rhymes. I think you are nice because you eat rice, things like that. And then as I grew up, I was writing, but I kept a diary and I kept it with me. I never showed it to anyone. Then a couple of poems were published in school magazines, and then I was in England for my PhD, and at that time there was a Northern England poetry competition. This was way back in 1990 or so. So I sent a couple of my poems, and William Scannell and Devjani Chatterjee were judges of that particular competition. Surprisingly, both my poems were selected and were published in the anthology. And that is the first time that I was invited to Lancaster Literature Festival, and so I went there. And that's how the journey began. Then when I came back, at that time, Kamla Das was poetry editor of Femina. So I sent a couple of my poems to her, and within 3 months, those poems were there in Femina. And I think that was a moment of great pride for me and gratification. I hadn't met her, I had never seen her, I had never written to her, but I was a great admirer. So, you see, they were published, and again, it was a high point in my life. So that's how the journey began. But then the first collection took a long time, life changed in many ways, one goes through so much. The first collection came out in 2007, and it was Yeti Books from Kerala, Calicut, and Rajivan Thacham Oil, who was a poet from Kerala. He was running his own publishing house, and he brought out that particular collection in 2007. So that's how the journey began. Professor Uniyal, the very act of publishing means that you want to reach out to the reader. अगर हम छाप रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं लोग पढ़े। तो ये आपने डिसीजन कब लिया कि आप चाहती हैं कि लोग पढ़ें, और उसका रिएक्शन भी हम चाहते हैं? थोड़ा सा ये इंसान में होता है कि कुछ तारीफ कर दे कोई, यार हमने भी लिखी है किताब, तो ये एक कॉमन ह्यूमन फीलिंग है, फीलिंग ही कहेंगे उसे। लेकिन अगर हम पब्लिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों के पास जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारी कविता लोग पढ़ें। So when did you think that this should happen, and what was the response to your earlier collections of poetry? मेरे पास आपका तीसरा है। जी। You see, the very fact that you write, आप लिखते हैं, तो जब आप कलम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात आपके जहन में रहती है कि कोई सुने, जी, बिल्कुल। आप अदरवाइज लिखेंगे ही नहीं। You always write because you have this desire to be heard. And there's a great connect between writing and speaking and hearing. The art of listening is an art which is gradually disappearing. There's too much of talk everywhere. But I think that as a poet, अंदर ये जज्बा होता है कि
कुछ ऐसा लिखा जाए जो कि पढ़ा भी जाए। तो रिस्पॉन्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, किसका रिस्पॉन्स? इतनी बड़ी सृष्टि है, हमने किस तरीके से इस सृष्टि को देख करके रिस्पॉन्ड किया है। मुझे सोक्रेटिस की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग। क्या बात, हमारा अस्तित्व ही क्या है इस विशाल संसार में। लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम लिखते हैं, कोई पढ़ता है, अप्रिसिएशन होता है तो अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं एक खुशी होती है, एक अनुभूति होती है जो कि हमें एहसास दिलाती है कि हाँ, हम अभी जिंदा हैं। ये जो कलेक्शन है, जहाँ तक एज फार एज द रिस्पॉन्स ऑफ पोएट्स इज कंसर्न, ये जब मेरा पहला ये कलेक्शन द डे वी वेंट स्ट्रॉबेरी पिकिंग, उसके बाद 2007 के बाद दूसरी किताब आई डिसम्बर पोएम्स, जो कि राइटर्स वर्कशॉप में निकाली थी। फिर तीसरी गैरी धौली से 2018 में। तो इसका लॉन्च हुआ था मैड्रिड में। आई वेंट टू मैड्रिड आर्ट्स फेस्टिवल। वहाँ पर एक ट्रांसलेटर ने ये किताब पढ़ी। उसके बाद इसका पूरा संकलन कोविड के दौरान, कोविड जब था तो उसमें कोविड पीरियड के दौरान उन्होंने इस किताब को स्पेनिश में, पूरी किताब को स्पेनिश में ट्रांसलेट किया। तो आई थिंक मेरे लिए ये मेरे एक बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है। ये दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्स। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो अंग्रेजी कविता की रीडरशिप बहुत लिमिटेड है। हिंदुस्तान बाहर है, आपकी पोएट्री ट्रांसलेट हुई अदर लैंग्वेजेस में, आप बाहर भी अप्रिसिएशन मिला। लेकिन ये एक समस्या है अंग्रेजी में लिखने वालों की, मैं भी अंग्रेजी में लिखता हूँ, कि यहाँ रीडरशिप कम है, क्रिटिक्स ज्यादा है, कवि बहुत है। बॉम्बे ग्रुप ऑफ पोएट्स, दिल्ली ग्रुप ऑफ पोएट्स, कलकत्ता ग्रुप ऑफ पोएट्स, लेकिन वो अपना अपना करते रहे। बड़े एक्सक्लूसिव ग्रुप्स हैं ना, आप उसमें एंट्री ले नहीं सकते। हिंदी में भी है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी के कवि कम है तो इसलिए उस ग्रुप में बड़ी मुश्किल से एंट्री मिलती है। और आपकी पोएम्स जो है, आप एज अ पोएट रिकॉग्नाइज आसानी से नहीं होते। तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे मैं आपका एक्सपीरियंस क्या? I think I would differ a bit in the sense that over the years the number of anthologies has gone up in a big way. Like there are anthologies across the country. Yes, you are right that there is a Bombay School of Poets and there is a Delhi School of Poets and there is a Kolkata School of Poets. And as far as I am concerned, I see myself as a poet who belongs to the backwaters of UP. That is लखनऊ से है भाई। तो लखनऊ का एक ज़माने में अपना एक खास हुआ करता था स्कूल ऑफ पोइट्री, अब तो नहीं है। और प्लस ये यूपी और पता नहीं उत्तरांचल का क्या हाल है कि हम लोगों का आपस में जो है मुफस्सिल टाउन्स भी है, और एक एनकरेज करने का और पोइट्री को वो क्या कहते हैं ना, प्रोत्साहन की एक कमी है एक दूसरे के लिए। कहीं ना कहीं ह्रास थोड़ा सा रहता है। छोटे छोटे, खैर ये इतना मायने नहीं रखता। लेकिन नहीं, जहाँ तक अंग्रेजी एंथोलॉजीज का सवाल है, अब तो बहुत इतनी एंथोलॉजीज निकल रही हैं और जगह जगह से पब्लिशिंग हाउसेस हो गए हैं कि मुझे तो ये कई बार ये लगता है कि कवि ज्यादा हो गए हैं, पढ़ने वाले बहुत कम। ये कविता का हाल तो है कि देयर आर मोर पीपल हु आर राइटिंग पोएट्री देन हु आर रीडिंग पोएट्री। बट देन गुड पोएट्री सर्वाइव्स एंड इट डजंट नीड एनी स्कूल। And you write, ultimately, who do you write for? You write for yourself, you write for your inner satisfaction. And if it's a voice that has to be heard, it will be heard. बहुत शुक्रिया आपका।